the students at SRCC, they are the least interested in academics. Like there are approximately 1,000 students in a batch. एक batch में मान लो उसमें से हो सकता है 200 टॉक्सिक हों या उससे ज़्यादा 500 समझ लो. Hi everybody, welcome to my channel and welcome to the second episode of Perspectives. Today we have with us a special guest from Shri Ram College of Commerce. She's Chavi and she's pursuing her Bachelor's in Commerce Honours and currently in her second year. Hi Chavi, how are you doing? Hello Ashi, doing great. How are you? Doing good. Feels good to have you on the podcast. So Same how do you here. feel being on the podcast? Really great. Like it's something new, and I hope I can contribute to your channel and also help the students out there. Yeah, absolutely. So we'll directly dive into the questions. Let's start with SRCC first, okay? Let's start with your experience at SRCC. So how was the first year at SRCC and Delhi University been? So it was really great. SRCC, the first thing which comes to your mind when you think about SRCC is its brand name. That yeah, it was my dream college and I got into it. It was a very big thing. Then if I talk about my experience, the 1 year, I explored each and everything. I met new people. You know what is the best thing about SRCC is that it's crowd. The people from top schools, all toppers come here, and it's not only about studies, they are also good in sports and other activities. So the crowd at SRCC was amazing. Then it was just great. I organized fests at SRCC, joined the college societies, and worked on things which I never thought that I would. Even I got the chance to speak on stage with some industry professionals, and it was amazing because in school we don't get such opportunities and we are just focused on studying and studying and studying. That's all. So in college you try out new things, you do things which you've never done, and you make new friends. And ऐसा नहीं है कि कॉलेज में सिर्फ आपको दोस्त अच्छे होते हैं कॉलेज में. आई नो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ थिंग विच पीपल थिंक कि कॉलेज में दोस्त नहीं बनते. ऐसा नहीं है, कॉलेज में भी लोग होते हैं एंड यू लर्न हाउ टू नेटवर्क विद पीपल इन कॉलेज. सो ये एक नई चीज़ थी. एंड या इंटर्नशिप करना कॉलेज में, हाउ टू बैलेंस एवरी थिंग, एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ना, ऑल दीज थिंग्स आई डिड इन कॉलेज. सो ओवरऑल इट वॉज रियली ग्रेट एक्सपीरियंस. Okay, so first year की बात करिए. So let's discuss the 3 takeaways that you had from the first year of college. Okay, the first thing is do manage your time because college में there are many things which you have to do. The first, societies का काम. If you're doing some kind of online internship, then उसका काम. Then I know people think कि पढ़ना नहीं होता, but पढ़ना होता है. रोज़ नहीं पढ़ना होता, थोड़ा पढ़ना होता है because इंटरनल्स के नंबर लगते हैं, टीचर्स के साथ बना के रखनी पड़ती है. सो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई वुड से डू एलोकेट योर टाइम टू ईच एंड एवरी थिंग. ट्राई आउट एवरी थिंग इन कॉलेज. ये नहीं कि आप किसी चीज़ को मिस आउट कर दो, ये भी नहीं सब करना है, बट डू दोज थिंग्स विच यू वॉन्ट टू डू इन द फर्स्ट ईयर. बिकॉज उसके बाद थर्ड ईयर में यू थिंक अबाउट प्लेसमेंट, सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप्स. सो फर्स्ट ईयर इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग. सो फर्स्ट थिंग इज़ डू मैनेज योर टाइम. Second, try to manage your expenses as well because college time पे pocket money, funds देखना पड़ता है. I was from Delhi, so I live with my parents, तो ठीक है. But जो बच्चे आते हैं बाहर से अपनी अपनी states को छोड़ के दिल्ली में, they have to manage their funds. Hostel की फीस लगती है, बाहर घूमने जाना होता है, transportation, there are so many costs. So the first thing was time management. Second, manage your funds. Third thing can be that don't think about FOMO. FOMO में मत जाना. Every other student will be doing something else. If you come to SRCC, you will see हर बंदा कोई ना कुछ नया काम कर रहा है. किसी का अपना स्टार्टअप है, कोई अलग ही कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा होगा, कोई कुछ और कर रहा होगा, एंड कोई बच्चा केस कॉम्स जीत रहा होगा. लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई मिस्ड आउट ऑन केस कॉम्स. आई जस्ट डिड 3 to 4, बट देर आर सम पीपल हु डिड 20 or 30 इज वेल. सो अगर मैं सोचूं तो मुझे लगेगा कि वो कर रहा है तो मुझे भी करना है, बट यू हैव टू थिंक अबाउट कि टाइम है आपके पास या नहीं है. So that is the thing. Don't get into FOMO. जो करना है खुद सोच के करो, that whether you want to do it or not. So yeah, these were the 3 takeaways from my first year at college. I believe when everybody is doing something different, you are just in a space of diversity and confusion and doubt. So you have to ultimately understand what's your goal and what do you want to do.
तो वो एक्सप्लोर करके यू टोटली अंडरस्टैंड इन द फर्स्ट ईयर, एंड एज यू सेड सेकंड ईयर इंटर्नशिप्स के लिए डेडिकेटेड हो जाता है. सो यू हैव टू डू केस कॉम्पिटिशन्स एंड एवरीथिंग ऑन डू इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ. Right. So great takeaways. I believe let's move on to SRCC now. Let's discuss about some flaws of SRCC क्योंकि हर college perfect नहीं होता है. Every college has some flaws or disadvantages जो generally highlight नहीं होते हैं. So let's discuss about some flaws about SRCC. What do you think according to you? Flaws. Okay, so the main flaw at SRCC is पहली बात तो गवर्नमेंट कॉलेज है. I know the benefit of it is कि फीस कम है, बट एडमिन जैसा है, आपको काम निकलवाना बहुत मुश्किल है. इफ़ यू वांट अ सिग्नेचर ऑन सम काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा. सो दैट इज़ द थिंग. बहुत ज़्यादा हमने पढ़ा था 12th क्लास में रेड टेप कि टाइम लगता है हर चीज़ में. डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हर बंदा कोई ना कोई और बात करेगा. इफ़ आई गो टू सम फर्स्ट पर्सन, ही से गो टू सेकंड पर्सन गो टू थर्ड पर्सन गो टू फर्स्ट पर्सन. तो वो घुमाते रहते हैं हर चीज़ में. तो बैंक्स में ऐसा होता है, आधार कार्ड बनाने जाओ तब ऐसा होता है. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम इन कॉलेज. Second thing, professors. See, there are really great professors at SRCC. They've done PhD, some are CA, CS, and their qualifications are really great. But some of them, they don't know how to teach. Like they are learned and they have done everything in their life. But दूसरे को सिखाना होता है. Some professors lack that thing. So not everyone is perfect. तो ऐसा है कॉलेज में, and हर कॉलेज में है. It's not that कि SRCC में सब perfect हैं. But कुछ professors they are not that good, and you will actually get a hard time managing those professors because कुछ professors नंबर भी नहीं देंगे and जान पूछ के नंबर काटेंगे. and वो हर कॉलेज में होता है. SRCC में some are famous and when you will enter SRCC you will know about them. ये दो मेन फ्लॉज हैं. बट सम पीपल से कैंपस छोटा है कॉलेज का. आई डोंट केयर अबाउट दैट, बट सम पीपल से, तो एक वो हो सकता है फ्लॉ. बट एंड द फोर्थ वन इज द कैंटीन इज रियली बैड. लाइक यू कैन नॉट इवन ईट one thing at our canteen. It is not even edible. So that is the other problem at SRCC. Apart from these things, it's perfect. Okay. Yeah, मतलब I went to SRCC once and my experience was not that good apparently with the crowd. Maybe because of my trades, but the college was not small at all according to me. Like as per what I've seen in the DU colleges, SRCC has a good amount of space and infrastructure. So that is the thing, but people say the thing. Yeah. Further move to a very opinionated point, that college and course. How do you literally feel ki aajkal when people are talking about college versus course, what is your opinion on how to literally manage the preference list and how to curate that when it comes to college versus course? So what is your opinion on that? Let's talk about that. ओके, सो अगर आप ये क्वेश्चन मुझसे एक साल पहले पूछते, आई वुड हैव सेड कोर्स, ऑफ कोर्स, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कोर्स इट अलाइंस विद योर इंटरेस्ट. इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई डोंट लाइक इकोनॉमिक्स मच, सो आई कुड हैव गॉट अ बेटर रैंक इन इकोनॉमिक्स in SRCC, but then also I chose BCom honors because BCom honors इतना specialized course नहीं है, बहुत general course है. and I thought कि मैं अगर BCom honors लूँगी then other courses, other activities पे I could focus more. But if I say right now, my opinion would be that college name matters a lot. One of my friends is in LSR. She doesn't have that great course, but that college name matters a lot. So see, we all know that whatever we are studying in college, it doesn't matter. We are just studying in order to get a good CGPA and get a good job. That's it. So whatever we are learning, it's not going to help us in our later lives. So that's why the college name matters a lot. अगर नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है एंड कोर्स इतना खास है भी नहीं, सो नो वन केयर्स. इफ आई थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिक्रूटर्स इन कंपनीज, दे डोंट केयर कि तुम्हारा कोर्स क्या, तुमने पढ़ाई क्या करी है. एक दो क्वेश्चंस दे आस्क इन द इंटरव्यू अबाउट दैट, बट वो तुम पढ़ के निकाल सकते हो. बट कॉलेज नेम, जैसी अगर मैं अपने आप के बारे में बोलूँ, इफ़ यू थिंक अबाउट SRCC, यू विल नॉट केयर कि कौन सा कोर्स कर रहा है. एक अच्छी इमेज बन जाती है दिमाग में, येस शी इज़ फ्रॉम SRCC, अच्छा ही होगा बच्चा. यही है फॉर LSR और सम अदर नॉर्थ कैंपस कॉलेज. सो दैट इज़ द थिंग. बट ऐसा भी नहीं है कि ऐसा कोर्स कर लो जो बिल्कुल भी नहीं पसंद आपको, जो आपके करियर से बिल्कुल भी अलाइन ना होता हो. इफ़ आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट, ऑफ कोर्स इको ऑनर्स एंड BCom ऑनर्स या BMS हो जाएगा. अब मैं पॉल साइंस, हिस्ट्री ये सब तो करूँगी नहीं, एंड आई वोंट बी एबल टू डू दैट एज वेल बिकॉज CUT अलाउ नहीं करेगा. बट
if I have to make my preference list now, I would put SRCC on top, BCom honors, and then economics honors. Or what you can do, North Campus के top colleges, then अपना preferred course, then वापस North Campus के colleges with the other course. I hope I'm clear इसमें, because शुरू में the course you want plus North Campus. It's not कि हिंदू या हंसराज में इतना difference है, but North Campus का college है, नाम अच्छा है college का. And even if you are from a very bad college, it's not that you will not get opportunities. You'll just have to थोड़ा मुश्किल होगा opportunities ढूंढना. At SRCC and at other North Campus colleges, opportunities come to you. In the South Campus colleges, you will have to approach the opportunities. बस एक यही point है, but वैसे I think college name matters more than the course. That's my opinion. I believe कि हाँ college name actually matters क्योंकि brand value the college you're studying at it reflects somehow on your resumes or be it when finding some internships, but I believe it should be 50-50. Like as you said, कोई ऐसा course मत करो जो तुम्हारे interest से बिल्कुल ही align नहीं होता. You do not want to literally study that for 3 years or 4 years now. So you choose a course which aligns with your interest and you actually want to study. You do not want to do Sanskrit honors अगर आप North Campus में ही जाना चाहते हो. Right. So choose a course which you can bear for the coming 3 years. So that's it, I believe. Let's now talk about CUET. What was your CUET score and what 3 tips would you give to your juniors who are coming or are going to give CUET next year? So yeah. So my raw score was 794. I just did one mistake in English, and if I talk about my normalized score, it was 788.7, I guess. तो score ये था, and I also got AIR 10 in CUET. So that was a good thing. But if I give some tips for CUET students, thank you. The first thing is like be consistent. ये नहीं है कि last में CUET हो जाएगा. The thing is boards and CUET का syllabus is almost the same, but CUET में there are deleted concepts. So what you can do is that when you are preparing for your boards, do each and every concept in the best manner and सब अच्छे से पढ़ लो. When the boards end, उसके बाद you'll get 1 or 2 months. In that you can cover the deleted portion and do MCQs and practice a lot. वो 2 months they are enough. उनको holidays नहीं मानना, उनको एक तरह से preparatory leave होती है जैसे, तो पढ़ना है 2 months में. And your approach should change. The first thing is बोर्ड्स में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश में लिटरेचर है, सो सब कुछ सही है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट CUET, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही या गलत, उसमें कुछ बीच का नहीं है कि ग्रेस नंबर मिल जाएंगे या एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे. सो द फर्स्ट स्टेप वुड बी दैट बी कंसिस्टेंट. सेकेंड वुड बी दैट यू शुड नो द होल सिलेबस ऑफ CUET. डिलीटेड पोर्शन को एंड में करना है, शुरू में करोगे यू विल फॉरगेट एवरीथिंग. सो वो एक चीज़ है. एंड प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो. इफ़ आई टॉक अबाउट इंग्लिश फॉर एग्जाम्पल, इतना वास्ट कोर्स है, इतना सिलेबस है, एंड यू कैन नॉट कवर दैट इन दोज 2 months. फॉर इंग्लिश आई वुड से इवन एप्टीट्यूड बढ़ाने के लिए RC पढ़ सकते हो, पढ़ना अच्छा है आपकी इंग्लिश के लिए. इवन दैट वुड हेल्प इन योर बोर्ड्स RC जो आते हैं. सो रीड एज मच एज यू कैन. शुरू से शुरू करो. जैसे आपका क्लास 12 शुरू हो जाए, रीड 1 पैसेज एवरी डे एंड दैट वुड बी सफिशिएंट, बिकॉज उससे एटलीस्ट आप जल्दी समझ पाओगे व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द पैराग्राफ. सो दैट इज द थिंग. प्रैक्टिस अ लॉट. थर्ड थिंग कैन बी इट कैन बी लाइक डू गिव मॉक्स. या प्रैक्टिस है बट वो मॉक्स में आ गया कि मॉक्स ज़रूर करने हैं. आई डिडेंट डू मैनी मॉक्स. मैंने 5-10 मॉक्स करे होंगे, वो भी एक दोस्त से मांग के, बट एक्स्ट्रा कुछ परचेज नहीं किया. बट मॉक्स से क्या होता है, यू एक्चुअली गेट दैट फीलिंग ऑफ एग्जामिनेशन कि आप उस समय बैठ के दे रहे हो. एंड आई सीन सम ऑफ माई सीनियर्स हु आर एट SRCC, दे गिव मॉक्स एट द एग्जैक्ट टाइम ऑफ देयर CUET एग्जाम. मतलब जैसे 1 महीना पहले आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर माई CUET एग्जाम्स, तो अगर मेरा CUET एग्जाम फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल्ड होगा 10 बजे, तो मैं 10 बजे ही रोज मॉक पेपर दे रही हूँ. सो दैट माई बॉडी क्लॉक बिकम्स लाइक दैट कि हाँ 10 बजे मुझे पता है कि मुझे पेपर देना है, नींद ना आए. तो ये सब चीज़ें होती हैं. एंड एक बुक से नहीं पढ़ना प्लीज़. जितना ज़्यादा बुक से पढ़ सको पढ़ो. इट्स नॉट कि आप कंफ्यूज हो जाओ सब बुक्स में. अच्छे से पढ़ो. NCERT विल बिल्ड योर बेसिक्स, बट अदर बुक्स विल एक्चुअली हेल्प यू गेन मोर मार्क्स, बिकॉज क्वेश्चंस ट्विस्ट होके आते हैं. CUET में सिंपल आते हैं, बट बोर्ड्स में ट्विस्ट होके आते हैं क्वेश्चंस. एंड स्पेशली फॉर मैथ्स NCERT इज़ नॉट इनफ. एग्जाम्पलर करो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करो.
So that's my point of view. I don't think कि NCERT is enough for boards or CUET. Extra books are required because practice होती है, and you cannot do NCERT बार बार. आप NCERT ख़त्म कर दोगे दिसंबर तक, फिर जनवरी फेब मार्च उसमें यू कैन नॉट रीड द कॉन्सेप्ट्स अगेन एंड अगेन, बोर हो जाता है बंदा. सो यू नीड मोर क्वेश्चन, सम न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस इज वेल. सो दोज आर माई टिप्स. थोड़ा ज़्यादा हो गया बट या दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं, आई बिलीव या दे आर वेरी एक्चुअली इंपॉर्टेंट. प्रैक्टिस तो दैट्स वाई मॉक्स आर इंपॉर्टेंट कि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे MCQs आता है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दी पैटर्न ऑन विच CUET मेक्स दी क्वेश्चंस. तो फिर CUET इज बेस्ड ऑन, तो फॉर्मेट आपको जानना ज़रूरी है ताकि प्रैक्टिस में आ जाए. दैट्स वाई प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट. BCom honors, I'm also pursuing BCom honors, you're also pursuing BCom honors. BCom honors is a very famous course in University of Delhi. Like सबसे ज़्यादा applications I believe BCom honors के लिए आती है, so the competition is very high. So ऐसा अगर कोई चाहता है, if they are considering doing a commerce course apart from BCom honors, what do you think are some underrated courses at the University of Delhi? Underrated courses for commerce students. See, commerce वालों के पास इतना options है ही नहीं. There is BCom honors, there is economics honors and BMS है एक. So BA program is also there, BCom program is also there, but if I talk about brand और जो matter करता है ना, so BCom honors and economics honors, these are the ones which are gaining importance. But एक BMS है, if I talk about Sukhdev College, वो बहुत famous हो रहा है and it's actually a really practical course. I've seen some of my seniors getting into Shahid Sukhdev College and they say that BMS is much better than BCom honors. BCom honors बहुत general course है, उसमें आप कुछ particular नहीं सीखते, सबके बारे में सब कुछ पढ़ रहे हो and समझ कुछ भी नहीं आ रहा. So that is the thing about BCom honors. But yeah, you can do eco honors, but people say it's maths honors. So अगर maths अच्छी लगती है and you think you can bear maths for 3 years, only then go for eco honors. वरना देयर इज BMS, एंड BMS के लिए कॉलेज के ऑप्शंस कम है. दैट इज द ओनली प्रॉब्लम. सो इफ यू आर एबल टू गेट सुखदेव फॉर BMS देन इट्स ग्रेट, वरना तो BCom honors इज द बेस्ट वन. सो ट्राई टू गेट फुल मार्क्स और मे बी हाई मार्क्स इन CUET so that you can get into BCom honors and a great college in North Campus. Yeah, that. Let's now talk about preference list, क्योंकि एक बहुत जनरल डाउट रहता है regarding that. There are a lot of YouTube channels posting videos about preferences for BCom honors, and generally the people who are currently studying in Delhi University know about the actual condition of the colleges, क्योंकि जो नहीं है कॉलेज में वो नहीं बता सकता about how you should rank the colleges, because हर साल every college does anything different, और फिर preferences में you have to ultimately make the changes, और सबके लिए factors consider करना अलग होता है. So let's consider some general factors and rank top 10 colleges for the preference list for BCom. For BCom honors, okay. So BCom honors के लिए first तो of course I would put SRCC. तो वो तो है SRCC. उसके बाद since I'm a girl so LSR आएगा. Now इसमें भी बहुत confusion होता है कि why LSR and not Hindu और हंसराज. LSR साउथ में आ जाएगा. It's not a North campus. So वो एक बहुत मुश्किल decision था whether to keep LSR on second or on fourth. तो आई केप्ट LSR एट सेकेंड, SRCC LSR. उसके बाद देन देर इज हिंदू और हंसराज. अगेन अ कन्फ्यूजन अराइजेज कि हिंदू बेटर है या हंसराज बेटर है. सो माई सीनियर सेड कि इतना कुछ डिफरेंस है नहीं दोनों में, दे आर मोस्टली द सेम, ब्रांड नेम भी सही है. हिंदू हंसराज में ये बेटर है कि बस शाहरुख खान वहाँ से पढ़ा था तो लोग दे फील कि हाँ हमें हंसराज से करना है. सो वो एक फैक्टर रख सकते हो, बट आई केप्ट हिंदू एट थर्ड एंड देन हंसराज. उसके बाद सी टू बी वेरी ऑनेस्ट माई स्कोर वॉज गुड. मुझे पता था कि टॉप का नॉर्थ कैंपस टॉप 5 में मिल जाएगा. सो मैंने सिर्फ दिमाग लगाया वो टॉप 5 में, बाकी सब आई सर्च्ड ऑन गूगल कि कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं एंड कॉपी पेस्ट, दैट्स इट. सो आई वॉज श्योर कि टॉप 5 में मिलना है. सो SRCC LSR हिंदू हंसराज एंड देन आई केप्ट आई गेस मिरांडा रखा था मैंने 5th पे बिकॉज उसका ब्रांड नेम है. See, it doesn't matter. If I talk about Miranda House, it's a really great college. I've been to that college. The environment is much less toxic than SRCC और बाकी colleges. तो एक ये अच्छा है मिरांडा में. Then I'll just search. और भी हैं colleges वैसे. रामजस को keep थोड़ा नीचे please, because I know रामजस पता ही होगा कितना famous है अपने North Campus में. So I kept I guess रामजस at 8. Eco honors, right?
किस में? Miranda, because they do not offer Yeah. BCom honors, no? So you kept Yeah, yeah. honors. Hmm. So वो mix, वो भी एक प्रॉब्लम आता है, because if I have to do BCom honors and economics honors, so उसको mix करना कि whether I should keep SRCC BCom honors, SRCC economics honors first second या फिर eco honors को last में रखना है. So वो भी एक issue आया था, but कर दिया था because I was sure कि नहीं करना eco honors, but वही है. My score was good, that's why I was able to decide that. अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है, so you have to make the whole preference list अच्छे से, ध्यान से. So उसके बाद I guess I'm not that sure. Miranda के बाद what all colleges are there? Help me, Ashi. Yeah. So you have Kirorimal College, you have Ramjas, you have Venkateshwar College, and then Yeah, I kept ARS KMC. Yeah. Yeah, I KMC. then kept KMC. उसके बाद हम्म. रामजस, जितना मुझे याद है, एंड उसके बाद मैंने वेंकी रखा होगा. रामजस मैंने नीचे ही रखा था. आई ट्राइड माई बेस्ट बिकॉज यू नो वेंकी उसके बाद, एंड देन द साउथ कैंपस कॉलेजेस जो भी हैं, JMC है, देन शहीद भगत सिंह है, सो उनको एक एक करके बस रख दिया नीचे. सो दैट इज द थिंग, यू हैव टू रिसर्च अ लॉट. मुझे अभी याद नहीं है बिकॉज मैंने एक साल पहले रिसर्च किया था. सो यू हैव टू रिसर्च कि टॉप नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस, टॉप देन नीचे वाले कॉलेजेस इन नॉर्थ कैंपस, देन द टॉप साउथ कैंपस कॉलेजेस, फिर नॉर्मल साउथ कैंपस कॉलेजेस, एंड देन ऑफ कैंपस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो अलग से होगा. सो ये सब पूरा ऐसे बनाना होता है प्रेफरेंस लिस्ट. बट उस आपके स्कोर से बस ये होगा कि आप थोड़ा श्योर हो जाओगे कि आपको कौन से रेंज में मिलने वाले हैं कॉलेजेस. वैसे ही योर प्रेफरेंस लिस्ट हैज़ टू बी द सेम, टॉप कॉलेजेस एंड देन द नीचे वाले कॉलेजेस. तो उसमें कुछ इतना फ़र्क नहीं आएगा. Okay. So let's further move to the next segment. This is a newly introduced segment on the podcast. This is a myth or reality segment where we'll be discussing about if the fact is a myth or reality, which is generally talked about amongst people. So the number one I'll ask you is SRCC is more academically oriented. What's your viewpoint on that? I think it's a myth because academically oriented college है, बच्चे नहीं है. Like the college tries its best to make the people nerds और पढ़ते रहो. Attendance का भी issue SRCC में आया है. If you don't get a good percentage in attendance, you'll be detained. And इस बार ऐसा हुआ था. So college is trying its best कि academically oriented करें, but the students at SRCC, they are the least interested in academics. Like एग्ज़ाम के 10 दिन पहले पढ़ना शुरू कर दें, वो बहुत बड़ी बात होगी, वरना सब एक दिन पहले पढ़ते हैं सिलेबस अपना. एंड नो वन स्टडीज अ लॉट इन SRCC. इन फर्स्ट ईयर येस दे डू, बिकॉज वो जोश होता है कि नहीं हम तो पढ़ेंगे, सीनियर्स ऐसे ही बोल रहे हैं हमें, हम तो पढ़ना चाहते हैं. बट व्हेन यू विल एंटर द सेकेंड सेमेस्टर एंड द सेकेंड ईयर, यू विल रियलाइज कि पढ़ाई का इतना इंपॉर्टेंस है ही नहीं. यू हैव टू जस्ट गेट अ गुड CGPA एंड गेट अ गुड जॉब एंड अपस्किल योर सेल्फ. तो हाँ, इट्स अ मिथ. Okay. The next one is SRCC has the best annual fest in Delhi University. Since it's my college, I'll say it's a reality. I love my college and the fests are good. I can't reveal the secrets ऐसे, but हाँ, कॉलेज में आओगे पता चलेगा, बहुत चीज़ें होती हैं फेस्ट कराने में. रातों रात सिंगर बदल जाते हैं, ये हमारे कॉलेज में हुआ था. सो दैट इज़ द थिंग. बट हाँ, बाकी कॉलेजेस के मैंने इतना अटेंड नहीं किया. DTU का वॉज गुड, आई गेस श्रेया घोषाल आई थी. सो तो बाकी कॉलेजेस का अच्छा है, हमारा भी अच्छा है. सो रियलिटी. Okay. The next and the last one is people at SRCC are toxic. It's neither a reality nor a myth because बीच में देखो, toxic, there are approximately 1000 students in a batch. एक बैच में मान लो उसमें से हो सकता है 200 टॉक्सिक हों या उससे ज़्यादा, 500 समझ लो. यार देखो, टॉक्सिक लोग होते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर अप्रोचिंग देम. आप उनसे कैसे बात कर रहे हो. सी SRCC में पूरी इंडिया के लोग आते हैं, अलग अलग स्टेट्स के आते हैं. सो हो सकता है आपके थॉट्स अलाइन ना हो दूसरे बंदे के थॉट्स से. सो ऐसा नहीं है कि टॉक्सिक है, कुछ लोगों के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं. आई हैव मेट मेनी टॉक्सिक पीपल एट SRCC, बट आई हैव मेट अदर गुड पीपल ऑल्सो. सो ना ही ये मिथ है ना ही रियलिटी है. बट हाँ, टॉक्सिक लोग मिलेंगे, हर कॉलेज में मिलेंगे. सो या, बट इट्स फेमस. आवर कॉलेज इज फेमस फॉर टॉक्सिसिटी. You'll actually see they are so professional and you'll see people in formals, laptop लेके सब बैठे हुए हैं. Like we all are ready to be corporate slaves in 2 or 3 years. That is the thing about SRCC.
Okay, great insights. Let's move to the next question. Let's move to BCom honors के further career options क्या है? Like who all should consider doing BCom honors and what are the future career options when you do BCom honors? क्योंकि एक general doubt रहता है. We can do a lot of stuff. So according to you, what are some great career options that people should consider? Okay, so as a commerce student also, SRCC में if I talk about even after masters, consulting, finance, strategy, HR, बहुत सारी fields हैं which you can go into. So consulting में consultant बन सकते हो. उसके लिए you will have, देखो course आपको कुछ नहीं सिखाएगा, आपको extra पढ़ना ही पड़ेगा. So it's just कि डिग्री मिल गई. Then think about other career options. You can do many things after BCom honors. Entrepreneurship कर सकते हो. Startup culture हमारे कॉलेज में है. So you will actually connect with people and open a startup, be an entrepreneur. This is the first thing. Second, consulting में जा सकते हो. Consultant बन सकते हो. The package is really great for consulting. Finance में जाओगे, then investment banking is there. There are many things. Trader बन सकते हो. You can get into core finance. CA तो बहुत famous है हमारे कॉलेज में. You'll see half of the people doing CA. So you can be a CA, CS, बहुत सारे exams हैं. You can just give those professional exams. Clear करने के बाद there are other opportunities as well. Then consulting के बाद HR में जा सकते हो. देखो, that is the thing. It's not limited to BCom honors. कुछ भी कर सकते हो. Data analyst बन सकते हो. जोन सी फील्ड में तुम्हें इंटरेस्ट है, you can do anything after BCom honors. और if you are able to learn some kind of programming language, then उसमें जा सकते हो. तो fields कुछ particular नहीं है. You can even do law after BCom honors. ऐसा नहीं है, because law आप CA में पढ़ते हो. So law पढ़ के तो your degree doesn't limit the career options. जो चाहो बन सकते हो. पायलट बनना है, पायलट बन जाओ, बट एग्जाम्स देना पड़ेगा. BCom honors सिर्फ एक डिग्री है. दैट इज द थिंग. बाकी जो चाहो, देयर आर वेरियस करियर ऑप्शंस. सर्च कि तुम्हें क्या करना है एंड देन यू विल बी सॉर्टेड. Okay, great. So let's move to the last question of the podcast. What are some few tips that you wish to give to your juniors who will be coming in first year? So first year का वो experience and something related to that. What do you want to talk about? So let's move to that. Yeah. So there's so much to talk about first year में. तो the first thing is, in the first month, you will actually be really alone. पहले दिन ही you'll talk to so many people and you'll feel कि तुम्हारे सब दोस्त बन गए हैं, बट एक लोनलीनेस होती है बच्चे के दिमाग में इन द फर्स्ट मंथ, बिकॉज द स्कूल लाइफ इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम कॉलेज लाइफ. यू विल मीट रियली न्यू पीपल. उनके थॉट्स कुछ ज़्यादा ही अलग होंगे, कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रोवर्ट होंगे, कुछ इंट्रोवर्ट से होंगे, कुछ बोलेंगे ही नहीं. एंड यू विल सी कुछ लोगों के पहले ग्रुप्स बन चुके होंगे. सो शुरू में व्हाट्सएप ग्रुप्स बन जाते हैं कॉलेज खोलने से पहले ही. सो यू विल सी कुछ बच्चे तो इतना ज़्यादा बात कर रहे हैं, हम मिस आउट ना कर जाएं. सो ये सब चीज़ फर्स्ट मंथ में बहुत ज़्यादा होगा. यू विल ट्राई टू मेक न्यू फ्रेंड्स. और एक टिप बहुत इंपॉर्टेंट, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. स्कूल में पढ़ते थे और बातें इतना नहीं करते थे. इन कॉलेज ट्राई टू नेटवर्क विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, बिकॉज यही लोग बड़े होके कंपनीज में बड़ी बड़ी पोजिशंस होल्ड कर रहे होंगे. एंड इट्स ग्रेट टू हैव दैट काइंड ऑफ अ नेटवर्क. सो जस्ट ट्राई टू कॉन्टैक्ट अदर पीपल. और झिझकना नहीं है, वो शाइनेस को दूर करो. जितना हो सके रीच आउट करो लोगों को. और एक्सेप्ट द फैक्ट कि इन कॉलेज इट्स मोस्टली अबाउट गिव एंड टेक रिलेशनशिप. मैं कुछ दूंगा तो दूसरे को देना पड़ेगा. एंड ये इसमें कुछ गलत नहीं है, दुनिया बुरी नहीं है. जस्ट चेंज योर पर्सपेक्टिव कि अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है तो ऑफकोर्स वो एक हेल्प सोचेगा कि आप भी उसकी करोगे. सो दैट इज़ द थिंग इन कॉलेज. देन अगेन फोमो में मत रहना कॉलेज में. आई एम टेलिंग यू, बिकॉज फोमो बहुत ज़्यादा होगा. बिकॉज 12th में लिंक्डइन नहीं होता. इंस्टाग्राम आई नो पीपल यूज अ लॉट, तो उसमें ही फोमो हो जाता है. बट वो फोमो इज कि दूसरा बंदे ने कैसे कपड़े पहने हैं, बाहर जा रहा है घूमने, तो वो फोमो बहुत अलग है. इन कॉलेज द फोमो वुड बी कि उस बंदे ने इतने कोर्स करे हैं, इतनी इंटर्नशिप्स करी हैं, इतना केस कॉम्स किया है, इतना जीता है. और ऐसी अपॉर्चुनिटीज होंगी जो किसी और को मिल जाएंगी, आपको नहीं मिलेंगी. बट डोंट बी सैड, बिकॉज हो सकता है अगली अपॉर्चुनिटी आपकी हो जाए. तो ऐसा है. एंड तो फोमो में मत रहना बिल्कुल भी. रीच आउट टू योर सीनियर्स एज मच एज यू कैन. सीनियर्स बहुत हेल्प करते हैं. बैचमेट से ज़्यादा आपके सीनियर्स हेल्प करेंगे. सीनियर्स और सारे अच्छे नहीं होंगे. या कमिंग टू टॉक्सिक पीपल, देखो टॉक्सिक लोग होंगे कॉलेज में. ऐसा नहीं है कि आप बस अटैच्ड हो जाओ. ट्राई टू लेट गो ऑफ थिंग्स. अंडरस्टैंड कि आप एडल्ट हो. एडल्टिंग इज नॉट ईजी. इन कॉलेज यू विल रियलाइज कि एक न्यू वर्ल्ड है पूरा. सो
try to reach out to your seniors, talk to them, and if you're feeling that this other person is not that good, leave it. Try to have a good network of people, a good people which you are with, ताकि नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए आपकी लाइफ में. टॉक्सिसिटी से दूर रहो. अगर कोई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन. बहुत लोग हैं कॉलेज में और दोस्त बन जाएंगे. और ट्राई टू जॉइन सोसाइटीज़ इन कॉलेज, बट सारी सोसाइटीज़ नहीं, लिमिट में. हर चीज़ हैज़ टू बी लिमिटेड. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट फेस्ट्स में पार्ट लो तो बहुत सारे फेस्ट्स हैं एट SRCC. क्रॉस रोड्स होगा, बीकॉन होगा, दैट इज़ बिजनेस कॉन्क्लेव, और बाकी सोसाइटीज़ फेस्ट्स कराएंगी. सो ये नहीं है कि आप हर चीज़ करना चाहो. जस्ट फोकस ऑन वन थिंग. करना सब है थोड़ा थोड़ा. ये नहीं कि आप एक ही चीज़ में बस घुस जाओ और बस वही करते गए हो. देन बहुत ज़्यादा टिप्स होगी, बट एक लास्ट टिप कि थिंक अबाउट द प्रोफेशनल कोर्स विच यू हैव टू डू. आई हैव सीन पीपल जो हमारे कॉलेज में आते ही CA करने लग जाते हैं. थिंक वेदर यू वॉन्ट टू डू दैट और नॉट. देर आर वेरियस अदर कोर्सेज. प्रोफेशनल कोर्स CFA है, CS है. करना है या नहीं पहले सोच लो. बिकॉज अगर एक बार तुमने चूज कर लिया देन यू हैव टू बी डेडिकेटेड टूवर्ड्स इट, एंड तुम्हें वो करना पड़ेगा. एक बार घुस गए तो बस चले गए CA में, एंड वो तुम्हारा कॉलेज लाइफ थोड़ा चेंज कर देगी, और बहुत चेंज कर देगी. यू विल नॉट हैव टाइम टू एंजॉय विद फ्रेंड्स. तो वो सब पहले सोच लो, एंड कब करना है. ये नहीं है कि पहले दिन से ही पढ़ना शुरू कर दो. यू हैव टू एंजॉय योर कॉलेज लाइफ, बिकॉज ये 3 साल वापस नहीं आएंगे. सो थिंक अबाउट दैट. Spend time with your parents, with your friends, and try to make out the best time in your college. जितना ज़्यादा कर सकते हो करो, but take care of your health, physical health, mental health, and you will be sorted then. Yeah, that's the advice, the main advice, the things which I wanted to say. Yeah, great advice. एक चीज़ मुझे जाननी है, ठीक है? The podcast will be over in a few more minutes, but मुझे जानना है about the society culture at SRCC. Like, how is it? See, society culture हमारे कॉलेज में it's not bad, but it will actually give you a lot of FOMO, because I don't know why इन्होंने हर चीज़ के लिए सोसाइटीज़ ऐसे बना रखी हैं, Tier 1 सोसाइटीज़, Tier 2 सोसाइटीज़. तो वो प्रॉब्लम यू विल फेस. कोई भी चीज़ रिटर्न में नहीं है, बट पीपल विल से अच्छा तुम प्लेसमेंट सेल के पार्ट नहीं हो, तुम बेकार हो, इसका मतलब तुमने कुछ नहीं किया लाइफ में. इनएक्टर्स के पार्ट नहीं हो, तुमने क्या करा लाइफ में. तो SRCC में अगर तुम किसी अच्छे सोसाइटी के पार्ट नहीं हो ना, यू विल एक्चुअली नॉट बी गिवन इंपॉर्टेंस. लोग जैसे सोसाइटी में जज करते हैं कॉलेज के नाम पे, SRCC में जज करेंगे सोसाइटी के नाम पे. अच्छा ये बंदा PC का है तो मतलब अच्छा ही होगा. तो ऐसा करके जजमेंटल बहुत हैं लोग SRCC में अबाउट सोसाइटीज़. बट सोसाइटीज़ बहुत अच्छा एवेन्यू है, प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप सीख सकते हो. You can try to network with people whose interests align with your interests. तो societies एक पर्टिकुलर मोटिव पे काम करती है, जैसे कि फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट सेल, तो वो फाइनेंस पे काम करेगी. वुमेन डेवलपमेंट सेल वुमेन डेवलपमेंट पे काम करेगी. सो इफ़ योर इंटरेस्ट्स अलाइन विद द सोसाइटीज़ इंटरेस्ट तो वो अच्छा रहता है. यू विल मीट योर सीनियर्स. सो ज्वाइन ज़रूर करना सोसाइटी, बट नॉट मोर देन 3 or 4, बिकॉज फिर वो टॉक्सिक बन जाएगा एंड आपको काम सारा करना पड़ेगा सोसाइटी का. So कुछ का पार्ट बनो and do your best. That is the thing. Okay. Any closing statements? Closing statements, yeah. So it was really great to be here. So it's not my first podcast, but अच्छा लगता है that I'm able to help some students out there. And I hope कि तुम अपने college life का जो अभी आएंगे अपने college में, कि you are able to make the best out of your college and try exploring new things, do your best. And जो लोग CUBT के लिए prepare कर रहे हैं अभी, do follow आशी. एंड उसकी टिप्स ज़रूर काम आएंगी तुम्हारे. सो डू सब्सक्राइब एंड फॉलो एंड लाइक एंड कमेंट इज वेल. मुझे फॉलो भी कर देना इंस्टाग्राम पे. दैट इज़ द थिंग. ओके. I'll link her LinkedIn and Instagram in the description. Thank you, Chavi, for joining in. Thank you for saying such kind words. And your insights were wonderful, definitely. Thank you so much, Ashi. Thank you for having me. Also, guys, subscribe to the channel. We'll be coming with the third podcast very soon on the channel. So make sure to subscribe to the channel and like this video. Bye-bye. Bye.